objectives, and anyone interested in making testing a powerful tool for learning. Don't miss this chance to transform your assessments and support student success. And the good thing is, it's free. Thank you very much. Attention medical educators. I am Dr. Saud. As dedicated individuals striving to enhance student learning and outcomes in medical education, I invite you to join our free workshop on item analysis. This session will equip you with the tools to critically evaluate your assessment items, ensuring they effectively measure students' competencies and support your teaching objectives. Item analysis is a powerful tool used in assessment to evaluate the effectiveness of individual test questions by examining metrics like difficulty, discrimination, and guessing rates. You can identify which items accurately measure student knowledge and which may need revision. This process not only enhances the quality of assessment but also improves learning outcomes by ensuring that evaluations are fair, reliable, and aligned with the learning objectives. In the world where data-driven decision-making is crucial, this item analysis workshop empowers you to refine your assessment and better support student success. All right. Thank you very much. Are listening to us? Gigi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My screen is shared. WhatsApp is showing on your screen. Share the others. Right. So, we will start with the formal discussion of workshop. Is it shared now? Yes. Yes. All right. So, our topic for this workshop is item analysis. We are from Group 4, as I already introduced my colleagues and myself. Now, can anyone tell me that what is analysis or why we perform analysis? Anybody? कोई भी अपने अल्फाज में कुछ भी, anything? Analysis, why it is important, or what is the significance of analysis? Quality assessment. Quality assessment. All right. Analysis can be a closer look at something. To improve future. In our future, right. So we perform analysis. It is a kind of detailed examination of the elements or structure of something. So far, as you know, our KU and related colleges, we are mostly doing our assessment on the basis of multiple choice questions. So multiple choice questions are the basic tool for assessing the knowledge of our students. So before going into details, these are our learning objectives. These are the learning objective of workshop as a whole. So by the end of this workshop, we will be able to define item analysis. We can identify prerequisites of doing item analysis. We can discuss significance of item analysis, and then we can discuss the components or the key components of item analysis in details, and these are define and calculate the difficulty index for test items and its significance. Then we can define, calculate, and interpret discrimination index. We can understand the importance of distractor analysis, and we can identify strong and weak distractors. So inshallah,
as we will move further, we will discuss these things one by one. So now I'm sharing the introduction of this item analysis, right? My other colleagues, they will discuss in details. Now, what is item analysis? Can anyone? Type is basically a question. Right. You analyze a particular question in case of examination and MCQs and narration. Right. So here we are very much concerned about the multiple choice question. So we can say item analysis is a statistical method which is used to evaluate test questions. Specifically, we are talking about the multiple choice question, measuring their quality, difficulty, and discrimination power. So we can measure these three things by using different components of item analysis. Or we can say performing a series of statistical analysis on students' responses to multiple choice questions. So here I have a question for you people, right? So can anyone tell me that how we perform this item analysis? Or what are the, anybody in your setting, how these item analysis are performed for multiple choice questions specifically? And basically, the multiple choice questions are analyzed by the machine. There are softwares designed for that. Softwares. Discrimination index, the difficulty, the point-wise serial correlations, they are calculated. The reliability of the test is calculated. And based on that mathematical or statistical value, then we look back into the questions to assess whether these questions are accurate for the particular purpose or not. Right. So the purpose is that we perform this item analysis and it will let us know whether our test was too easy, too difficult, or moderate. Right. So there are various applications. For example, in our part of work, we are using these item analysis for educational assessments. We can use in psychological tests and we can use in different types of surveys. Now, as you people know, for every activity or for anything to perform, we have certain prerequisites. So for doing item analysis, we have certain prerequisites and we are focused on two main issues, and that is we should pay attention to number of students and the items. Because typically for less than 30 candidates, the item analysis statistic may not have high degree of confidence. If we have a smaller number of items, the reliability of test is difficult to determine. So we should focus on the number of the students and the number of the items. For example, like number of the MCQs we are doing item analysis for. So these two factors are very important to get the appropriate results of these item analysis, which we want to incorporate changes, or we want to modify our MCQs, or we want to modify our assessment. Okay. So significance or importance of item analysis. Can anyone, any significance or any why we perform item analysis? Anyone, please? To improve quality of exam. Quality, right? Quality of MCQs. As And it brings fairness to the exam. fairness to the exam. Feedback from our experiment. Difficulty. Relevance. So there is a certain significance to perform. Yes, you can say. All right. So we will discuss the significance of item analysis. First of all, it is used to improve the test quality. As I told you, item analysis, it helps to identify poorly performing items. For example, some of the MCQs are too easy. Some of them, these are very hard to understand or moderate.
So we can identify these problems, whether the MCQs were too easy that everybody was able to answer those questions, or those were too hard, or a moderate one. So this helps to improve test items for better assessment of students' knowledge and understanding of the content. Basically, this is assessing the concept of the student, right? So the second one is that we can assess item difficulty. See, almost related to each other. All right. Then, by determining discrimination index, item analysis show how well an item differentiates between high-performing students and the low-performing students. This we will discuss in detail, inshallah, in the upcoming session by my colleagues. A good item should ideally be answered correctly by higher achieving students and incorrectly, and this will indicate it is effectively measuring the understanding. Now, number 4, we can say that it ensures the reliability and validity of the multiple choice question. So, by performing or by doing item analysis, educators can improve test reliability, that is consistency in measuring their knowledge, and validity, that is accuracy in assessing the intended concepts. Then we can use this tool for grading and feedback to the students. How? Item analysis, it provides feedback on which topics students struggle with the most, informing instructors where they may need to reinforce instructions. Secondly, instructors can adjust grading or provide targeted feedback based on which items were frequently missed, helping students understand areas where they need improvement. So we can set standards for gradings, and we can provide feedback to the student on the basis of this, performing these item analysis. Minimizing bias. Analysis may reveal items that unintentionally favor or disadvantage certain student groups, allowing educators to define items for fairness. This Dr. Shabir already told that we use this for the fairness of assessment. So, what are the key components of item analysis? There are the 3 components which we should analyze, and these are difficulty index, discrimination index, and the distractor analysis. You people must have idea about these 3 terms. So, what is difficulty index? How we can define or how we can explain this? It's basically the percentage of a question corrected by the number of students. Number of the students. All right. Anyone? It is the number of students who answers a question correctly divided by the total number of students who attempted. Okay. And discrimination index? How it discriminates between bad and good students. Good Or students. Or is lower ranked students or poor students. okay. And the distractor analysis? Our distractors, as we already discussed yesterday, Dr. Sirar discussed this in detail. How effective were the distractors? Distractors. Distractors इसके साथ मिलते जुलते हैं या बहुत ज़्यादा दूर हैं? Like बहुत एकदम ज़्यादा। से significance सामने आ जाती है. Okay. Right. So आप लोगों को concept मुझसे ज़्यादा clear है. So we will just go through briefly. So a difficulty index, basically it indicates the proportion of students who answered the item correctly, reflecting its difficulty level. As I already told, whether it was too easy, either the MCQ was moderate or it was too difficult to attempt. जैसे हमारे एग्जाम के बोर्ड हमें लाइक वही बात थी कि हमें नहीं आ रहे थे, मुझे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे वो नॉलेज था बट मैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी. इट डजंट मीन कि दोज वर टू डिफिकल्ट, लेकिन मे बी माई कॉन्सेप्ट्स वर नॉट क्लियर.
Okay, Ji. So discrimination index, it says that it measures how well a test item differentiates between high performing and the low performing student, as already somebody told this. All right. So distractor analysis, it evaluates the effectiveness of incorrect choices, that is the distractors in multiple choice items. So इसको हम detail में करेंगे, there are positive distractors, there are negative distractors and things like this. So, what are the challenges which we can face during item analysis? So, आप लोग सारे सो तो नहीं गए? Can someone read this for me? Anybody? Resource Intensive, intensive, time consuming, and requires statistical knowledge. Second is sample dependency. Results Yes. can vary based on the sample size and Sample size and the demographic. Focus on values, quantitative data. quantitative data may overlook qualitative insights like reasoning behind incorrect answers. Anything else we can add to these challenges? number of people, मतलब लोग जो हैं qualified people जो हैं वे भी शायद वो भी Yes. Available software. Softwares, yes, available softwares. And Feasibility. visibility, like Implement हो सकता है कि नहीं हम इसको कर सकते नहीं हो हैं सकता, नहीं कर सकते. Exactly. AI challenges. AI challenges. For people like old school like us, we are not used to using these gadgets. All right. प्लस एक्सेप्टेबिलिटी भी है कि मतलब स्टेक होल्डर्स और ये सारे को करना भी चाहते हैं नहीं करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते. Exactly. So there are not many challenges we can face during item analysis, but by the end we can say that importance of regular item analysis in maintaining the reliability and validity of assessment, we cannot ignore this. So this is a brief summary, but this is summary of my presentation. Inshallah, further we will discuss. These are the references, and thank you very much. So we will have a question answer session at the end of the workshop. So now I will stop sharing the presentation. Now we will move to the second presenter, and that is Dr. Karishma Ali. Dr. Karishma, are you there? Dr. Karishma? Yes. So I hope the upcoming session are more interactive and more interesting, because there we are performing some activities also. Over to you, Dr. Karishma. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Karishma Ali. So I welcome you all. So our group participants are already Dr. Uzma has shared that I am myself Dr. Karishma Ali, Dr. Uzma, Dr. Shehzad and Dr. Saud. So first of all, our learning objectives will be that define the difficulty index and calculate the difficulty index for the test items and interpret its significance. तो आप सबके हाथों में जो है ना मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल में आपके कैलकुलेटर्स ऑन होने चाहिए, क्योंकि जो डिफिकल्टी इंडेक्स है ये सारा का सारा जो है कैलकुलेशन है. अगर आपको इसके फार्मूलाज और इसकी कैलकुलेशन का मेथड आ गया, इसका मतलब है कि आपने डिफिकल्टी इंडेक्स सीख ली है. And the third one will be identify the items that may require revision or elimination based on their difficulty levels. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, you are audible. So what is an assessment? हमें क्यों जरूरत है असेसमेंट की? अगर हम असेसमेंट ना करें कोई फर्क पड़ता है? तो कौन पढ़ेगा मैडम? कौन पढ़ेगा? सही है, ठीक है. It's to check the learning of the students. Exactly. If our students learn,
exactly ये सामने एक उन्होंने लिखा है कि if our students learn what we have taught, we will never need to assess. अगर हमें पता होता हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है, क्योंकि हम तो पढ़ते नहीं हैं एग्जाम्स की तरह, तो इसलिए हमें असेसमेंट की जरूरत होती है. So this assessment is the bridge between the teaching and the learning of the student. Know about how much the students have learned about what we want to. Teaching and learning without assessment is like cooking without tasting. ये असेसमेंट वर्क है. आपका माइक ऑफ है. Karishma, you are mute. Just sorry. अब ठीक है? Yes, yes. मुझे किसने म्यूट कर दिया? अच्छा. आपने ये उसको वाला म्यूट कर दिया. ये वाला हो गया था पीछे वाला. आपने उसको म्यूट कर दिया. अच्छा, इस पिक्चर में कोई क्या चीज दिखा रहे हैं? क्या चीज आपसे सीख रहे हैं इससे? पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. too easy. Assessment was too easy. क्वेश्चन बहुत आसान है. पढ़ा भी नहीं फिर भी पढ़ा नहीं पास हो गया फिर भी पढ़ा नहीं है पास हो गया है ये बात है. इसने हमारा है पास हो गया. हाँ, और अब ये क्यों हो रहा है? बहुत है पढ़ता रहता है और फिर छो मारने के लिए कहता है कि मैंने नहीं पढ़ा. हाँ, ये भी हो सकता है. नजर से नजर बद है. डिफरेंशिएट बिटवीन those MCQs जो आसान है, मुश्किल है या फिर वो एवरेज है. तो coming towards the purposes of the difficulty index, सबसे पहले ये पर्पस क्या होगा हमारे पास कि हम ये चाहेंगे कि हम फाइंड आउट कर सके कि हमारे पास MCQ जो था वो था, मीडियम था या हार्ड. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें पता चल गया कि अब ये इजी था, मीडियम था या हार्ड था. अगर इन केस MCQ आपके पास हार्ड है, मुश्किल है, तो आपने क्या करना है? आपने उसकी रिवीजन करनी है with the alignment with the learning goals. ठीक है. और इसी तरह आपने क्या करना है? अब ऐसे भी आपने नहीं करना कि आपने सारे के सारे MCQ आसान दे दिए या आपने सारे के सारे एवरेज या हार्ड दे दिए. आपने इसको मिक्सचर ऑफ एक वो बाउल बनाना है. ठीक है. इसमें आपके पास इजी, मीडियम, हार्ड सारे के सारे MCQ हो, ताकि ये स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर सके. तो डिफिकल्टी इंडेक्स का सबसे आसान डेफिनेशन जो है कि आप कैलकुलेट करेंगे जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट परफॉर्म किए हैं उनकी करेक्ट आंसर्स. यहाँ पे हम रॉन्ग आंसर्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ करेक्ट आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे. हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है. So the percentage of students taking the test who answer the item correctly, the higher the difficulty index, the easier item it is considered. So आपके पास स्केल या P वैल्यू हम जिसे कहते हैं, वो तो 0 से लेके 1 तक जाएगा. ठीक है. फिर 0 से लेके 1 तक फिर इसकी अपनी कैटेगरी से हम वो आगे जाके इंटरप्रेट करेंगे. आपके पास इजी में कौन से नंबर आते हैं, मॉडरेट में और हार्ड में. यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जी. Yes. जी क्लियर है. जी मैम. अच्छा, आपने अपने पेज में या अपने मोबाइल में ये जो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है और डिफिकल्टी इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये अब अपने पास नोट करते हैं, क्योंकि आखिर में एक एक्टिविटी होगी जिसमें मैं आपको एक एक्सेल शीट दूंगी और उसमें स्टूडेंट के मार्क्स होंगे और आपने उसका प्रोपोर्शन का और डिफिकल्टी इंडेक्स का फॉर्मूला निकालना होगा. ठीक है. सबसे पहले जो आसान स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगी वो नंबर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है. टोटल आपके पास 5 स्टेप्स है. मगर नंबर 1 और 2 स्टेप्स जो है वो सबसे इजी है. सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने स्कोर का टेस्ट करना है. आपने बच्चों को नंबर्स देने हैं कि किसके 1 है, किसके 0 है. ठीक है. तो द पर्पस ऑफ द स्कोर टेस्ट विल बी द इनिशियल स्कोरिंग इज द एसेंशियल एज इट्स अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर एनालिसिस. नंबर सेकंड स्टेप आपने स्कोरिंग कर ली है. अब आपने टेस्ट पेपर को एक रिदम में रखना है. इस तरह रखना है कि आपने हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर वालों को ऊपर रखना है और जितनी लोवेस्ट मार्क्स है उनको आपने नीचे की तरफ लेके जाना है. ठीक है. तो आपने क्या करना है? आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना है. तो सॉर्टिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टॉप एंड बॉटम परफॉर्मर इन द
ठीक है। अब जो ठीक है, अब सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? आपको मेरी एक्सेल शीट नजर आ रही है? जी जी। यस आ रही है। ठीक है, मैं जो जो स्टेप करती जाऊंगी मैं आपके सामने परफॉर्म करती जाऊंगी। यही एक्सेल शीट अगर उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो डिफरेंट हो, वो आपने जो है ना सॉल्व करके फिर ग्रुप में सेंड करना होगा, ठीक है? आपके पास इसी तरह एक शीट होगी जिसमें आपके पास नीचे सारे रिस्पॉन्सेज है, ये स्टूडेंट्स है आपके पास सारे, और ये इनके रिस्पॉन्सेज है। दिस इज ओनली वन एमसीक्यूज, ठीक है? मैंने आसानी के लिए इसमें सिर्फ एक एमसीक्यूज रखा है, आप इसमें 4-5 लिख सकते हो। तो फिलहाल सिर्फ डिफिकल्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ एक एमसीक्यूज यहाँ, तो और सामने ये दूसरी शीट जब खुल जाती है तो यहाँ पे मैंने आपके सारे हेडिंग्स दे दिए हैं कि आपने किस किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना। इट इज लिटिल बिट हेक्टिक, मगर आप अगर कोशिश करें तो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्कोरिंग दे दी है, फिर हमने इस स्कोरिंग को क्या करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर को, सब फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट हमने इसको सॉर्ट आउट करना। हमने कर लिया। डॉक्टर करिश्मा थोड़ी आपको इंटरप्ट करी, ये जरा रिस्पांस दोबारा एक्सप्लेन कर दे। रिस्पांस में आपने क्या डाला है? 1-1 जो अच्छा, रिस्पांस पे मैडम ये जो स्टूडेंट ने एमसीक्यू सॉल्व किया है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स ये उनके रिस्पांसेस है कि जिन ये स्टूडेंट नंबर 1 का एमसीक्यू नंबर 1 करेक्ट है तो उसके 1 नंबर है, स्टूडेंट नंबर 2 का एमसीक्यू नंबर 2 ठीक है तो उसके 1 नंबर है। इसी तरह अगर आप नीचे आती जाए तो अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया ना, अब ये 40 पे ये नंबर 7 स्टूडेंट जो है इसका एमसीक्यू नंबर 1 गलत था तो इसकी 0 नंबर, ठीक है? एमसीक्यूज नंबर का पे रिफ्लेक्शन है एक ही क्वेश्चन के लिए आपने आंसर्स वो किए हैं, मतलब एक ही? हाँ जी, मैंने सिर्फ एक ही, असल में ये आप 4-5 एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं, मगर हर एमसीक्यूज के लिए आपने अलग से करना है। हर एमसीक्यूज का हमने डिफिकल्टी इंडेक्स निकालना है कि चाहे वो जो भी जितने भी एमसीक्यूज होते हैं हम ये वो करना चाहें कि ये आपके पास इजी था एमसीक्यू, वो मॉडरेट था या तो डिफिकल्ट था, हमने हर एक एमसीक्यू ये अलग से करना है। मैंने इस बार फिलहाल सिर्फ एक ही एमसीक्यू के लिए इनके रिस्पॉन्स यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। अब समझ आ गई है? प्रोसीड कर लूँ आगे? नहीं डॉक्टर करिश्मा, ये 7 वाले कॉलम में क्या है? ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है नंबर्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हो गए और ये एमसीक्यू का रिस्पांस शीट है, या फिर मैं इसको कह देती हूँ स्कोरिंग ऑफ एमसीक्यू 1। अब क्लियर है? अब क्लियर है? जी 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 बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, ये एमसीक्यू नंबर 1। यहाँ पे आप एमसीक्यू नंबर 2, 3, 4 लिख सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ आसानी के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सिर्फ एक एमसीक्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया था फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हाईएस्ट नंबर आपके पास ऊपर आ जाएंगे और लोवेस्ट जो है आपके पास नीचे चलेंगे, ठीक है? टोटल आपके पास पार्टिसिपेंट 40 है। अच्छा, ये 41 नहीं है, ये 40 है। असल में यहाँ पे जो है ये एक ब्रैकेट, यहाँ पे हमने स्टूडेंट नंबर और स्कोरिंग दे दी है, इसलिए ये 40 नजर नहीं आता, 41 नजर आ रहा है, ठीक है? हमने ये कर लिया। अब प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। प्रेजेंटेशन में ये लोग कह रहे हैं कि अब हमने क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है अपर 27%। अब जाहिर बात है कि हमने टॉपर स्टूडेंट्स को और जो जिन्होंने टॉप नहीं किया उन स्टूडेंट्स को हमने कंपेयर करना है। हमने सारे के सारे स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.7। इस स्टेप की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये why 2.27? 27% हमारे पास जो है वो एक यूनिफॉर्म है जिसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब ये आपके पास 27 अपर 27 लोअर लिस्ट की आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी जो एमसीक्यूज की है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। अच्छा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है?
तो अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाटा करेक्शन इसमें स्टेप 2 कौन सा है? स्टेप 1 तो हमने वो कर दिया ना, एनालाइज। की स्टेप 1 ये है स्कोर द टेस्ट, स्टेप 2 है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, अब हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे प्लीज आप बता दें। 40 थे। मैंने कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है? जी मैम। मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगी 0.27 which is equal to 10.8। तो इसको मैं राउंड अबाउट करके कितने स्टूडेंट्स अपर में लूंगी 11 और कितने स्टूडेंट्स में लोअर में लूंगी 11 ये दोनों के लिए अपर और लोअर दोनों के लिए। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स में अपर से लूंगी और 11 स्टूडेंट्स में लोअर से लूंगी। ना तक चुके हैं 18 दरमियान में रहते। जी जी। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की? ये कहाँ से आया कांस्टेंट 0.27? ऊपर से आया। ये किस फॉर्मूले पे? 27%। नहीं ये तो फॉर्मूले पे नहीं है, ये हमने लेना ही ऐसा है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला तो है। ये पूछो ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आई? इसका क्या मतलब है 0.27? अच्छा ये 0.27 जो है ना ये यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए। अब जाहिर बात है कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। हमने उन स्टूडेंट्स को लेना है जिनके स्कोर ज्यादा है और हमने उन स्टूडेंट्स को लेना है जिनके स्कोर कम। तो ये जब भी हम फार्मूला चाहे जितने भी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे उसमें 0.27 लगाएंगे। दिस इज द 0.27 लगाएंगे, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स 40 हो चाहे आपके स्टूडेंट्स 30 से कम नहीं होना चाहिए। 30 से कम ना। 27% तो फिर जब आप टोटल स्टूडेंट 40 के लिए करते हैं तो नहीं तो 11% हो गए क्या? हो 27 अपर के 11% हो गए। ठीक है थैंक यू। नहीं ये टोटल में से हो गया। स्टेप 2 जरा जल्दी से दिखा दें। स्टेप 2 आपके पास अरेंज द टेस्ट पेपर फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। अब इसको किस तरह करना है, आप यहाँ पे जाएं, इसको क्लिक करें, यहाँ पे आप सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें। आपके पास ऊपर वाले जो है वो हाईएस्ट नंबर आ जाएंगे और नीचे जो है जितनी भी रॉन्ग आंसर है वो नीचे। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, हमारे पास 10.8 इसको हम राउंड अबाउट करके कितने ले लेंगे 11। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वाली शीट दी। यहाँ पे क्या लिखा है अपर 27 अपर 27 कितने थे 11 और यहाँ पे हम कितने लिखेंगे 11। अब हम क्या करेंगे, हम अपर 11 रिस्पॉन्सेस को कैलकुलेट करते जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको हम यहाँ से कॉपी करके अच्छा ये अपर स्टूडेंट्स है। ठीक है, जितनी भी जिनकी अच्छी नंबर आई है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम रिस्पॉन्सेस पे दोबारा चले जाएंगे। ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप एक बार समझ जाए तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से काउंट करते जाए 11 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और आप कैलकुलेशन की तरफ चले जाए। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। यहाँ तक समझ आ गई? पता लग जाएगा उसे, बॉर्डर पता लग जाएगा जी। अच्छा, अब हमारे पास डिफिकल्टी इंडेक्स जो है ना वो हमने करेक्ट आंसर्स को देखना है, हमने इनकरेक्ट को काउंट नहीं करना। तो जो नीचे आपको येलो ये पूरी हाईलाइट आपको नजर आ रही है ना, हमने इस पे काउंट करना है कि आपके पास अपर वाले में कितने करेक्ट आंसर्स थे। तो अपर में आपके पास सारे के सारे करेक्ट थे, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 11। लोअर में आपके पास कितने ठीक थे 2 के अलावा? ये कितने बनते हैं 9 आप बता दें। 9। तो अब इस फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर 27 में टोटल आपके पास करेक्ट आंसर्स कितने थे 100%। 11%। इसी तरह लोअर में आपके पास कितने थे 9। शाबाश। अब आते हैं प्रोपोर्शन पे। अब ये दोनों प्रोपोर्शन अगर आपको मिल जाती है ना तो आप डिफिकल्टी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम किस तरह करेंगे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2
स्टेप नंबर 3 हमने कर लिए। अब हम स्टेप नंबर 4 रिपीट करा रहे हैं। किस चीज को रिपीट करवा दूं सर? मैडम स्टेप 3 को पूरा रिपीट करा रहे हैं शुरू से, क्योंकि कंफ्यूजन चल रही है। फिर जिस तरह आपने वो पहले जो कैलकुलेटर किया, कैलकुलेशन के बाद आप करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन के बाद आप ऊपर चले गए, ठीक है। आपके पास ये ऑलरेडी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट कर ले। अपर 27 को आप लेंगे, ठीक है, सॉरी अपर 11 को आप लेंगे, तो आप यहाँ से काउंट करते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 आप यहाँ से कॉपी कर ली Ctrl+C करके, और आप इधर जाएंगे ना कैलकुलेशन पे, आपने इसको Ctrl+V कर लेना है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे अपर में। हमने 11 को लेना है, ठीक है। 11 जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, उनको लेना है, उनके मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब हम दोबारा रिस्पॉन्स शीट्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम तब से एंड में चले जाएंगे। अब एंड में आप काउंट करते जाए 11 को, हमने अपर को ले लिया, अब हमने लोअर को लेना है, ठीक है। लोअर को कैसे लेंगे, अब आप काउंट करते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब आप इसको योग करके कॉपी करें Ctrl+C, और यहाँ पे आप इसको आके पेस्ट कर लें। जो पूछ रहे थे उनको समझ आ गई है? जी मैडम, अभी तक आ गई, आगे जाएं मैडम। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, हमने करेक्ट आंसर्स यहाँ पे लिख लेने हैं कि आपके पास अपर 27 में कितनों के आंसर जो है MCQ नंबर 1 के लिए करेक्ट थे, और लोअर में कितनों के आंसर जो है MCQ नंबर 1 के लिए करेक्ट थे। तो यहाँ पे एक 11 और एक 9 आता है, ठीक है। हमने उसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अपने लिए लिख लेना है, ताकि हम फिर उसकी प्रोपोर्शन निकाल सकें, ठीक है। फिर लोअर की हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर हमने लोअर का प्रोपोर्शन निकालना है। फॉर द प्रोपोर्शन हमने एक फॉर्मूला, ये आप लोग प्लीज अपने साथ नोट कर ले। मैं ये प्रेजेंटेशन जब आपको दूंगी ना, तो साथ साथ वो आपको असाइनमेंट दूंगी, तो ये अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर लूँगी, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला में कोई डिफिकल्टी होगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने पहले फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया। हमारे पास अपर पोर्शन में 11 आ रहे हैं और लोअर पोर्शन में क्या आ रहा है, 9, ठीक है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोर्शन के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेक्ट आंसर्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है, divided by total number of students each. फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ स्टूडेंट्स ईच, ठीक है। ईच का मतलब ये है कि अपर के लिए अलग हमें लेना है और लोअर के लिए अलग से ये फॉर्मूला करना होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द अपर, ये फॉर्मूला जो है अलग से लगेगा, फॉर द लोअर ये फॉर्मूला अलग से लगेगा। वो कैसे, इन केस आपके पास 11 नंबर जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर्स थे, और अपर में आपके पास टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है, 11 है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर से 11 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोपोर्शन पे हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 100%, 100% या फिर 1, ठीक है, ठीक है। इसी तरह लोअर के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, लोअर का बता दे कैसे करेंगे, 9/11, ठीक है, तो ये 88%। 0.81। ये तो परसेंट आ गया ना, ये परसेंट आ गया ना, कोई डिफिकल्टी होगी तो ये 0.8 लिखेगी, तो ये 0.8 लिखेंगे, 0.8 लिखेगी नहीं मैडम। थैंक यू। अच्छा, अब हमने ये वाला प्रोपोर्शन और ये अपर वाला, अपर PU प्लस PL का मतलब ये है कि अपर प्रोपोर्शन एंड लोअर प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे होगा, जनरेशन है। अच्छा, सिर्फ ये प्रोपोर्शन को बताने के लिए देखिए, एक हमारे पास 1 आया था और दूसरा हमारे पास 0.8 आएगा। आपके पास हमेशा स्कोरिंग जो है या स्केल जो है 0 to 1 आएगा, ठीक है। इससे अगर ज्यादा आएगा मतलब ये है कि हमारे पास आपने कोई ना कोई फॉर्मूला में गलती की हुई है, ठीक है। नीचे अगर आप ये स्पीड मीटर देख लें तो यहाँ पे आपको 0.0 0.12 ये सारे आपके पास 1 तक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला नंबर लास्ट वन 5, हाउ टू फाइंड आउट डिफिकल्टी।
हमने डिफिकल्टी इंडेक्स को कैसे मालूम करना है? PU stands for proportion P of the upper. upper P lower. 27% and proportion of the lower 27% divided by, ठीक है? अब So हमने क्या करना है? 1.8 into कैलकुलेटर को divided by निकालें, 2. एक इशारा 1 plus 1.81 ठीक है? divided by 1 plus 0.81 0.81 divided by 2. That is equal to 0.90. 90. तो 90% difficult. 0.9. बड़ा आसान सवाल है ये। नहीं, रुकिए सबर। अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है? 0.9 तो हमारे पास आ गया 0.90। तो easy. डिफिकल्टी इंडेक्स अब हम 0.9 कैसे है, करेंगे कि हमें कैसे डिफिकल्ट पता मोस्ट चलेगा है, कि आपके पास ये बहुत डिफिकल्ट easy है, था या मुश्किल था या एवरेज डिफिकल्ट था? मोस्ट है। उसके लिए आप प्रेजेंटेशन की तरफ वापस जाएं। प्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे ये देखिए व्यू में डिफिकल्टी इंडेक्स में आपके पास ये इस किस्म का टेबल आएगा, ठीक है? अच्छा इजी सामने आपको डिफिकल्टी इंडेक्स, इजी है, फिर उसकी स्कोरिंग नजर आ रही है, डिफिकल्ट है, Lower the average है या index, easy है, और उसके साथ higher क्या 90% करना है, सॉल्व कर लिया ना। अगर इन केस आपके पास स्केल आ रहा है फ्रॉम 0.0 to 0.0, this will be, this MCQs will be high difficult. difficult, ठीक है? अगर आपके पास स्केल आ रहा है फ्रॉम 0.3 to 0.7, this MCQs will be Moderate. moderate या फिर average. 0.7 to 1.0, this means this MCQ is Easy. easy. तो इसका मतलब है हमारा MCQ कैसा था? आप लोग बता दो। Very easy. इजी था कि डिफिकल्ट था? इजी था। अच्छा, ठीक है। तो दैट वाज इजी क्योंकि ये नंबर जो है वो 0.9 मतलब इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 ही आ रहा था, ठीक है? इसका मतलब ये कि मोस्ट स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली और MCQ आपके पास था। अगर इन केस आपके पास डिफिकल्ट आता है तो इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट किया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर इनको इसको रिव्यू कर ले करें इम्पोर्टेंट है या इसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है? आप डिपेंड करें। एंड मॉडरेट को हमने क्या करना है? हमने इसकी मॉडरेट MCQs हो दैट इज आइडियल फॉर द डिफरेंशिएटिंग परफॉर्मेंस। जी वैसे इस स्लाइड को जरा प्रोजेक्ट कर ले, ये 0.1 to 0.3, 0.3 to 0.7 या 0.1 to 0.2। ये तो सिंपल भी हम बता सकते हैं कि अगर आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 3 करेक्ट कर लेते हैं तो ये डिफिकल्ट है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट अगर 3 to 70% करेक्ट कर लेते हैं तो ये इजी है। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन की क्या? अच्छा सर, असल में अगर आपको पता हो तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट अल्टीमेटली मतलब वी आर आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर सिंपल हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं आउट ऑफ 40 अब 100 स्टूडेंट हर वक्त नहीं होते ना। एग्जैक्टली आप इसका परसेंटेज सेम ही आएगी। आप अगर इसको सिंपल टोटल जितने करेक्ट किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स और उसको फिर आप परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द सेम value. I think it is taking intelligent student and low performing students both. Middle are not. परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स प्लस देखिए p वैल्यू जो है वो एक वैल्यू है जो कि आपने पुट करनी होती है आपने अपनी रिजल्ट में, चाहे वो आपका आर्टिकल हो चाहे वो चीज। डिफिकल्टी इंडेक्स इज बेसिकली द p वैल्यू ऑफ योर MCQ। अगर आपकी p वैल्यू उससे कम आ रही है तो इस वो तो मैथमेटिकल है, लेकिन मेरे ख्याल में सिंपल जिस तरह इसने आसिफ साहब ने कहा वही मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर इसमें हाई परफॉर्मेंस के अगर सपोज ये डिफरेंशिएट उस तरह हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते whether the question is made wrong by the low performer or this by the high performer, इसकी कोई रिलेशन है इस फॉर्मूले से? नहीं सर, वो आपको इंशाल्लाह डॉक्टर शहजाद जो है वो आपको बता भी देंगे डिस्क्रिमिनेशन में हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस में, ठीक है? और इसमें भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप बड़ा से शायद वो सिंपल देखिए मेरी बात सुनिए। अब MCQ नंबर 1 है, ठीक है कि मेजॉरिटी ने जो है उसको ठीक किया है, मगर अगर आप इसको एक ऑर्डर में कर लें तो आपके पास ऊपर के जितने भी लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि इन सब के नंबर जो है वो अच्छे निस्बत लोअर के, ठीक? तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितनों के जो है वो लोअर में जो है ये चीज़ ज़्यादा कम आ रही थी या अपर में ये चीज़ ज़्यादा कम आ रही थी। इसी
करिश्मा जरा कैलकुलेशन दिखाएं इसकी जो आपने की है नेक्स्ट शीट। इसी कैलकुलेशन का मैं जरा पूछ लेता हूँ कि आखिर में ये आखिरी अगर आप असल में एक ही क्वेश्चन पे आप पूछ रही है, स्टूडेंट नंबर 36 या 37 या 35 ने आंसर करेक्ट किया, स्टूडेंट नंबर 1 ने भी करेक्ट किया, दोनों के एक ही जितने मार्क्स हैं, सो हाउ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग टू हाई परफॉर्मेंस ग्रुप? नहीं, वो आपको डॉक्टर शहजाद पढ़ाएंगे। डॉक्टर लो परफॉर्मर्स, ना करें। लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट और जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स यूज होता है। ये जो डॉक्टर करिश्मा हमें बता रही हैं ये एमसीक्यू के लिए जो है कि ये एमसीक्यू डिफिकल्ट था, इजी था या हार्ड था और या मॉडरेट था। सर एक मैडम एक क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी मेरा आप डॉक्टर करिश्मा एक क्वेश्चन जी जी क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जिसमें हम डेटा डालें और एग्जाम के एमसीक्यूज की वो हमें एनालाइज करके दे दे? खुद ही हमें एसएमएस कर दे, को पता हो मुझे इसके बारे में नहीं पता, वो हमें एसएमएस कर दे कि तुम्हारे एमसीक्यू के सुधार से सब है और बाकी वो आप जब हम इवन जब बहुत में भी करते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी इंडेक्स डायरेक्ट कैलकुलेट करके देते हैं। मैडम अगर आप रेपुटेशन फिर आपका काम है। अगर ब्लैक बोर्ड पे आप एग्जाम लें तो जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा उस पे आप आइटम एनालिसिस क्लिक करें तो ये सारे वैल्यूज वो भी आ जाते हैं। कैनवा पे है, ब्लैक बोर्ड पे है। मैडम जिप ग्रेड सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये जिप ग्रेड इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफिकल्टी इंडेक्स, अगर एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और स्टूडेंट अच्छे हैं तो का डिफिकल्टी इंडेक्स डिफरेंट होगा, या अगर कहीं बहुत ख़राब है उनको टीचर्स में क्वेश्चन बता देते हैं उनका भी डिफिकल्टी इंडेक्स पे डिफरेंट होगा। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ये इंस्टीट्यूट अच्छा है या इंस्टीट्यूट ख़राब है या स्टूडेंट अच्छे हैं या स्टूडेंट ख़राब है? तो बायस हो गया। मेरा ख्याल है कि ये तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है सर, ये बाकी जो पीछे इंस्टीट्यूट में हो रहा है शायद उसके बारे में तो हमें नहीं पता। एमसीक्यू के मुझे लगता है कि एक एमसीक्यू में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट अच्छा है या सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन यही ना, मोरल्स को तो नहीं इवैल्यूएट करता ना। पीछे आप क्या सॉफ्टवेयर आपके मोरल्स का जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको शराफत तो नहीं बता सकती कि आपकी स्कीमा वो जज कर सकते हैं आपके मोरल्स जो है वो इसका एडवांटेज ये है डॉक्टर करिश्मा आपको बताएंगे आप जो है उसको गलत नंबर देंगे तो गलत बताएगा। आइटम एनालिसिस का डिफिकल्टी इंडेक्स निकाल लेंगे एमसीक्यू का, तो कल के लिए आप अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो आप उसको सेग्रीगेट कर लें बिटवीन इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चंस। तो कल को अगर आपने एग्जाम बनाना है तो आप ज़ाहिर प्रोपोर्शन के मुताबिक कुछ इजी क्वेश्चंस लेंगे। जिस तरह एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज हैं तो वो रैंडमली तो नहीं उठाए जाते, उसकी एक परसेंटेज होती है। तो डिफिकल्टी इंडेक्स या बाकी जो इंडेक्सेस हैं जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे उसका फ़ायदा यही है कि आपको इजी हो जाता है एक बैलेंस्ड एग्जाम एमसीक्यू एग्जाम बनाने के लिए और बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसमें हम इंस्टीट्यूट की बुराई या अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते, देयर इज नो मोरलिटी इन्वॉल्वड इन इट। जी डॉक्टर करिश्मा प्लीज। केएमयू की पॉलिसी ये थी कि इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट जो है 33% थे, मतलब 33% इजी, 33% मॉडरेट और 33%। यस यू आर राइट डॉक्टर साहिल। अच्छा चलिए, डॉक्टर अमीन अबुल कुछ कहना चाह रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर मेरा से मुझे क्वेश्चन बस आ रही है आवाज कर रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सिराज ने कहा आप लेट्स सपोज ये 40 स्टूडेंट्स हैं और इसमें आवाज कट रही है, कनेक्शन शायद स्लो है, अभी आ रही है? यस जी सर प्लीज बोलिए। आप अपना कैमरा ऑफ कर दें तो फिर आवाज स्टेबल हो जाएगी। एक सेकंड से आप डिफिकल्टी इंडेक्स अगर हम सिंपल लें, इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 इन्होंने बताया है ना, और जो जिन्होंने टोटल करेक्ट अटेम्प्ट किया है वो 38 है। तो अगर मैं 38 डिवाइडेड बाय 40 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं सिंपली,
तो मेरे पास ऑलमोस्ट यही परसेंटेज आएगी 90-95, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम अपर 27% और लोअर 27% को सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहिए। जी आपकी बात ठीक है। इसमें असल में आई वुड कम अप टू इसमें फिर बाद में हम डिस्कशन करेंगे जब अपना डिफिकल्टी इंडेक्स ये पूरा कर लेना कैलकुलेट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज को अपर और लोअर फ्रीक्वेंसीज को निकालने का मकसद ये है कि इससे हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लें, इसके बगैर प्रोपोर्शन कैलकुलेट नहीं होगा, दैट्स व्हाई। वैसे तो अगर आप सॉफ्टवेयर में चले जाएं डायरेक्टली तो उसमें तो आपको डायरेक्ट उसके वो आ जाएंगे, लेकिन द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू एक्चुअली गिव यू द इनसाइट कि अगर आप मैनुअली किसी एमसीक्यू का डिफिकल्टी इंडेक्स मालूम करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। बेसिकली ये दिस इज द कोर ऑफ दिस वर्कशॉप। जी डॉक्टर करिश्मा कैसे लगा कैसे लगे आप बैठे हैं नहीं मेरे वाला उस पे कैसे आप कर रहे हैं? लगाता हूँ मैं आता हूँ ना सर। मैंने ग्रुप में एक एक्टिविटी आपको शेयर कर ली है और साथ में मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देती हूँ। सो आपके पास टोटल 10 मिनट्स हैं। आप काइंडली इसकी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन निकालें और इसकी डिफिकल्टी इंडेक्स हो जाएगा, चले मुश्किल नहीं है।